All right, everybody. So here I am with another banger content, and in this specific video, हम बात करने वाले हैं about the ad structuring, about the funnel, about the creative iteration, the creative strategies, about the ad set, about the framework which I have used this, and जिस account को मैं आज show करने वाला हूँ, I have spent lakhs of rupees in this account, and I have grown this business to CRs, crores, right? So what I'm just going to cover in this video is not only the positive aspect. It is also going to cover the negative aspect, like where my CPL get rises, where the spikes we got, when we got the best CPL, when we got the sit like kind of lead. What are the things I have did to like convert the set content, set leads into the better leads, and how we are getting good amount of leads every single day in a very less CPL. So this is going to be the more into the deeper content. This is not going to be just an overview which most of the creator pack it in the courses, right? In the paid courses. Obviously I'm also going to launch my own course because I also have to earn money. That is very simple as fuck, right? I have to earn money. I have to build my educational business. So I will definitely gonna to like put my course, and this content is not going to be live for a long day. I will put it down in my like members only, or in my course. So this video will be live for only the next 15 days. Today is what? Today is I think 21st of August, and it will be only live till 5th of September. After that I'm just going to put it in my members only, right? Perfect. All right. So I would suggest, like, there are some prerequisites before starting this video. You just have to bring your own notes. By the way, I just got this diary from Meta, if you can see. Then you just need a pen, and you just need a laptop, and with a secondary device where you are watching this video, right? Because you can't just slide the profile and watch like the dashboard and the strategies learning and all other things. So always try to bring two devices for the better experience. All right, so if you have time, then only watch this video. Otherwise you can just leave it right now. You can save it for later, and you can watch whenever you are free for the upcoming straight 1.5 hours, because I am just going to speak out loud, and जो strategies और frameworks में बताने वाला हूँ, that is going to be most valuable thing which I have shared so far entirely for free. Perfect. So without any further ado, let's get started. This is more than enough for just an introduction. If you're interested, so you will just drop the comment that I have started this video at this time, and I have completed this entire session at this time, and these are the topics which I have covered in a very better way, and I just got the clarity about these topics. Perfect. All right. Without any further ado, let's get started. All right. So let's start this banger content. And सबसे पहले यार 1 घंटे का कंटेंट होने वाला, ठीक है? 1 घंटे का पूरा ये क्लास होने वाला है. तो मैंने जो ऑलरेडी बोल रखा है, इसको पूरा एक वन गो में देखना, ठीक है? ब्रेक करके मत देखना, बिकॉज यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वन गो इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू फॉर दिस क्लास, ठीक है? सो थोड़ा सा मैं सो जाऊँगा, ठीक है? बिकॉज इट्स बीन लाइक लॉट ऑफ टाइम. मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. आई हैव रिकॉर्डेड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फ्रॉम लास्ट 3 आवर्स. तो मैं थोड़ा सा स्लो पेस में जाऊँगा, ठीक है? एंड फिर हम थोड़ा सा एनर्जी अपना मैच करते हैं, एनर्जी अपना मैच करते रहेंगे. बट या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली ना सबसे पहले हम अपना एजेंडा सेट करते हैं, बिकॉज एजेंडा फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो बेसिकली द एजेंडा ऑफ दिस टुडेज क्लास, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्रेमवर्क, ठीक है? अबाउट द फ्रेमवर्क. Then we'll talk about the funnel. Then we'll talk about the creatives. Then we'll talk about what? We'll talk about ad structure. ठीक है? And after that we'll talk about कि when the CPL rises and when CPL down, so what are the iteration we have done, ठीक है? Iteration we have done, and what are the mistakes you have to avoid, because that's the most important thing, ठीक है? What are the mistakes which you have to avoid? So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेमवर्क से. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शोकेस द अकाउंट वंस, ठीक है? कि अकाउंट हमारा एक्चुअल में कैसा है, हमने कितना स्पेंड किया है, एंड मैं कब से लेके कब तक का मैं आपको दिखाने वाला हूँ. एक्चुअल आई टेक ओवर दिस अकाउंट ऑन 9th of May. On 9th of May, the first campaign I have launched, and today is 21st of August, right? 2026.
तो पहले हम देखते हैं कि हमने कितना स्पेंड किया अभी तक। हमने स्पेंड किया है अराउंड 7.06 लाख, मतलब 7,06,000 रुपये अभी तक हमने स्पेंड किया। एंड आवर गोल इज़ टू टच अराउंड 10 लाख बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अराउंड अभी हम अपना बजट इंक्रीज करेंगे, सो या फॉर श्योर वी कैन रीच टू 10 लाख रुपीज़ वेरी इजीली। परफेक्ट। तो जो हमारा अकाउंट में ना स्ट्रक्चर था, लाइक द फ्रेमवर्क, इफ आई जस्ट टॉक, सो फ्रेमवर्क से पहले मैं थोड़ा सा एक बारी हिस्ट्री बताऊंगा किस अकाउंट का, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द थिंग्स, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छुपाऊंगा डेफिनेटली, द एड अकाउंट लाइक नंबर एंड ऑल, सो वो चीज़ें मैं डेफिनेटली छुपाऊंगा। बट सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ दिस अकाउंट इज गोइंग टू बी दैट जब मैंने इस अकाउंट को टेक ओवर किया था, देर वॉज द एड स्पेंड ऑफ अराउंड 80,000 के आसपास, राइट। अराउंड 80,000 के आसपास का हमारा इसमें एड स्पेंड हुआ था, ठीक है। 80K के आसपास का हमारा एड स्पेंड हुआ था। एंड CPL वॉज लिटरली एट द स्काई, लिटरली एट द स्काई। मैसेजिंग कॉन्वर्जेसन भी होते थे एंड दैट वॉज ऑल्सो एट द स्काई। इसके पहले इस पे VSL फनल फॉलो लाइक लग चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें ट्रिप फायर फनल भी एक बारी हो चुका है, ट्रिप फायर फनल भी इसमें लगा के देख चुका गया है, ठीक है। बट रिजल्ट वॉज लिटरली डॉग सिट, देयर वॉज नो रिजल्ट एट ऑल। what I have done, what the changes, what the framework which we have used for this account, ठीक है, उसका सबसे पहले देखते हैं। देखो, जब मैंने थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में रिसर्च किया ना, when I just got to understand कि who is going to be the audience, तो ऑडियंस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑडियंस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। they have the capacity to pay around 1,000 to 2,000 AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है। एंड दे हैव द स्कारसिटी, मतलब they are into the fear, they have the scarcity, they have the FOMO, right, fear of missing out, क्योंकि the client which I'm talking about, he actually helped the Indian immigrants in Australia who is preparing for the job for the companies and all, so उनको हेल्प करते हैं इन द इंटरव्यूज, इन द जॉब क्रैक्स एंड लिंक्डइन अथॉरिटी बिल्ड करने में एंड ऑल। तो बेसिकली दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस करंट ऑफ दिस अकाउंट। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, इस पे ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत अच्छे खासे पोस्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट भी बहुत अच्छे खासे पोस्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग वी मैनेज एक्चुअली, ठीक है। सो इट मीन्स द अकाउंट वॉज टू हेल्दी, द कंटेंट वॉज टू हेल्दी, एवरीथिंग वॉज टू गुड, बट there was one like obstacle here. There was no trust at all. There was literally no trust at all. There was no trust because Instagram पे जब मैंने like client को onboard किया था, he only have around 250 followers, ठीक है, 200 plus 50 follow or 250 plus followers, and today at this point of time he have around 5,000 plus followers. So we have just see a small growth in the number of the followers that actually build the credibility, but followers does not matter at all. I know it very well that you also know it very well ki followers does not matter at the founder level. What matters the most, your credibility, but the credibility is too strong, and credibility always come from how persistent, how consistent you are with your content, with your things, whatever you are delivering, and what's the quality of the content and the information which you are delivering. That's the most important thing. And in this journey we got few of the videos got viral, ठीक है। कुछ वीडियोस अच्छी खासी वायरल भी गई, जहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी खासी आई, ठीक है। अब ऑर्गेनिक रीच से हमें क्या फ़ायदा हुआ, जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक रीच आई ना, अराउंड ऑफ 600K, ठीक है, के आसपास ऑर्गेनिक रीच आई, हमने डायरेक्टली रीटारगेटिंग कैंपेन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रीटारगेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस रीटारगेटिंग वर्क्स रियली वेल। मतलब इसने सबसे ज़्यादा अगर योगदान अगर इस पूरे एड कैंपेन में किसी ने दिया है तो वो रीटारगेटिंग ने दिया है, ठीक है। परफेक्ट। सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल रिव्यू। अब हमारा जो फ्रेमवर्क था, बेसिकली हमारा सिंपल सा फ्रेमवर्क क्या होता है ना, पहले द फर्स्ट थिंग इज दिस कि यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया इन लास्ट फ्यू मंथ, वी हैव बिल्ड द क्रेडिबिलिटी, बिकॉज मार्केट हमारा छोटा है बट हमारे पास 5,000 प्लस फॉलोअर्स है, जो कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में मोर देन इनफ है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कि ऑर्गेनिक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, स्टेप 1।
इज टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी. आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल, अगर मेरा वीडियो कहीं पे मिस हो गया हो. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द क्रेडिबिलिटी, राइट. जो कि कहाँ से बिल्ड होती है? वो बिल्ड होती है आपके परसिस्टेंसी से, आपके कंसिस्टेंसी से, जो हमने बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ कंटेंट. ठीक है. सो स्टेप 1 हमारा डन, दैट इज द स्टेप 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया. देन द सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2 इज बिल्ड द पाइपलाइन. ठीक है, विद द प्रॉपर सेल्स. देखो, अगर आपका मार्केटिंग कितना भी स्ट्रांग है, अगर आपके लाइक एड्स कितने भी स्ट्रांग है, क्रिएटिव्स कितने भी स्ट्रांग है, बट अगर आपकी सेल्स टीम इज नॉट गुड इनफ, ठीक है, अगर आपकी सेल्स नहीं स्ट्रांग है, सो एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी द वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ टाइम. तो स्टेप 2 में हमने सेल्स को, अपने लाइक क्लाइंट के सेल्स टीम को, वी हैव जस्ट गिव देम लाइक conversation and all, and we just help them to get their sales team at the best. ठीक है, जहाँ से हमारे conversion आ सके. After that we have launched the ads. ठीक है. So mainly हम क्या करते हैं कि हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सबसे होता है पहले ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक के बाद, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ऑर्गेनिक के बाद होता है फिर हमारी सेल्स टीम को या फिर जो भी SOPs हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना. ठीक है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आफ्टर दैट फिर हम एड्स को लॉन्च करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं ना, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस प्रोसेस पे. तो अगर ये वाला प्रोसेस खराब है ना, तो ये वाला प्रोसेस 100% खराब होने वाला है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वंस द थिंग गेट स्टार्टेड वर्किंग, सो फिर हम क्या करते हैं, हम स्केलिंग करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, perfect. So this is the entire process, this is the entire framework. credibility building, sales team strong करना, फिर ads. ठीक है, and credibility हम organic से build करते हैं, and after that हम inorganic पे आते हैं. This is just the additional part, जो अगर mainly आपकी टीम अगर already strong है तो you can do it, तो ये फिर eliminate हो जाता है process. अगर नहीं है तो फिर we can guide by our own कि हाँ, how you can build your sales team also. बट माई क्लाइंट इज़ क्वाइट वेल इन टू दिस इंडस्ट्री, तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें. ठीक है. सो दैट्स वाई हम लाइक मेनली 2 पिलर्स पे काम करते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग पे एंड एड्स को स्केल करने पे. परफेक्ट. तो अभी तो हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट है द फ्रेमवर्क वो कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब देखो यार, फ्रेमवर्क सबका अपना अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ नाम देते हैं. एक तो एंटायर आपने सिस्टम का एक आप नाम दे सकते हो. ठीक है, आप एड स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हो. सो दैट इज़ जस्ट द ट्रेडमार्क नेम, मतलब लोग अपना एक मोनोपोली जमाने के लिए लोग अपना नाम देते हैं. दैट इज़ द वेरी सेल्स और मार्केटिंग का टैक्टिक्स की, इफ़ यू वांट टू बी एट द टॉप, सो यू जस्ट हैव टू गिव अ स्पेसिफिक नेम एंड फ्रेमवर्क टू योर थिंग्स व्हाटएवर यू डू एक्चुअली. सो ऑलराइट, नाउ दिस थिंग वर्कड रियली वेल. हमारा पहला पड़ाव पार हो चुका है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ फनल. देखो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना पिछले कुछ ईयर्स से, जब से मैं इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हम लोग एक स्पेसिफिक इसमें कर देते हैं. ठीक है, कस्टम में जाके परफेक्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो कि है हमारा फ्रेमवर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फनल. अब देखो यार, मेरा ना फनल के साथ का एक्सपीरियंस हो रहा है. हमने क्या क्या ट्राई करके देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्राइड द VSL फनल. ठीक है, हमने सबसे पहले VSL फनल ट्राई आउट करके देखा. दैट डज नॉट वर्क फॉर अस एक्चुअली. ठीक है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला. तो व्हाट वी हैव डिड, हमने इसको क्विट कर दिया. ठीक है, VSL फनल हमने लॉन्च किया था. हमारा जो CPL था दैट वाज क्वाइट हाई, क्योंकि हमें डायरेक्टली VSL से अपने लैंडिंग पेज से डायरेक्टली कंसल्टेशन कॉल बुक करना था. तो CPL वॉज अराउंड 1800 to 5600 के आसपास भी ज़्यादा था. तो दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो हमने इसको क्विट कर दिया. फिर हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने मैसेज से कन्वर्जन करना स्टार्ट किया ऑन द मैसेंजर और ऑन WhatsApp. बट स्टिल दैट वाज लाइक ब्रिंगिंग द जंक लीड. WhatsApp और WhatsApp funnel, so that was bringing the junk lead, so that also does not work for us, junk leads. After that we have executed the consultation call. हमने डायरेक्टली अपना कैलेंडली का लिंक डाल दिया. बट उससे क्या होता था कि हाँ, मतलब यहाँ पे एक और चीज़ था कि कंसल्टेशन कॉल में जब हमने किया था तो वी वर चार्जिंग अराउंड आई थिंक $97 के आसपास, $97 के आसपास हम चार्ज करते थे. दैट वाज नो सॉरी आई एम सॉरी, दिस वाज फॉर द लीड मैग्नेट एक्चुअली. कंसल्टेशन कॉल के लिए द फीस वाज 97 रुपीज़. ठीक है, इट वाज 97 रुपीज़ ओनली इन INR. आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ इन
AOD. I just actually don't remember. So consultation call worked, but यहाँ पे भी junk lead because 97 rupees is nothing. Literally, it's nothing. So we have tried कि हम इसको increase करें, but I thought कि let's move to the another funnel because हमने पैसे यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लगा रखे थे. हाँ, of course conversion आए थे. Conversion इन तीनों से आए. It's not like this कि conversion नहीं आए, but the amount जो हमें the numbers जो हमें match करना था, that was not the exact thing which we have matched. So that's why that this funnel does not work for us. Then after we have go to the Tripwire funnel. ठीक है, हमने Tripwire funnel भी यूज़ किया जहाँ पे हम 97 रुपीज़ का मिनी कोर्सेज या फिर एक हमारा प्रोग्राम था. ठीक है, मतलब प्रोग्राम कह सकते हैं या फिर ई बुक कह सकते हैं. सो इन दैट ई बुक देर वॉज अ लिंक्डइन अथॉरिटी के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की गई थी. सो दैट कॉस्ट $97. बट यहाँ पे हमारा CPL बहुत हाई जा रहा था. ठीक है, CPL वॉज एट द पीक. तो ये भी वर्कआउट नहीं किया हमारे लिए. रियली वर्क फॉर अस. ठीक है, इज़ इंस्टेंट फॉर्म. ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म वर्क रियली 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 वेल. अब देखो इंस्टेंट फॉर्म हमारे लिए क्यों वर्क किया पता है? बिकॉज हर एक बिजनेस में ना कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, कुछ क्वालिफाइंग लाइक माइलस्टोन्स होते हैं. अगर आप उस चीज़ को एग्री करते हो देन यू आर द हॉट कैंडिडेट और हॉट लीड. सो इंस्टेंट फॉर्म में वी हैव आस्क्ड अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन. ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन हमने पूछना स्टार्ट किया. अलॉन्ग विद दैट वी हैव डिड द SMS वेरिफिकेशन. ठीक है, SMS वेरिफिकेशन के बाद क्या होता था, जैसे ही हमारे पास लीड आती थी देयर इज़ अ सेल्स कॉलर. ठीक है, देयर इज़ अ सेल्स लाइक सेल्स और अपॉइंटमेंट सेटर वॉट एवर यू कैन से. देयर वॉज अ अपॉइंटमेंट सेटर. सी कॉल इमीडिएटली एंड एक बारी मीटिंग स्केड्यूल हो जाता था. ठीक है, गूगल कैलेंडर पे. देन आफ्टर देयर वॉज द सेल्स क्लोजर विच कम ऑन द कॉल. तो इट मीन्स देयर वॉज अ फिल्टरेशन लेवल, मतलब एक अच्छा खासा फिल्टरेशन लेवल था. SMS वेरिफिकेशन के बाद सबसे इसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आता था. इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्टली आप सेल्स कॉल पे या फिर अपॉइंटमेंट लेटर रात में कॉल कर देते थे. नहीं, हम बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सअप का भी एक यूज़ करते थे सो दैट वी कैन जस्ट डू द कॉन्वर्सेशन एंड अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम अपना केस स्टडी भी शेयर कर देते थे. हम हमारी टेस्टिमोनियल्स को भी शेयर करते थे, अपने वेबसाइट को भी शेयर करते थे. तो देयर वाज द 5 लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन विच वाज हैपनिंग. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कन्वर्जन है वो काफ़ी अच्छा आने लगा. हम डेली के अराउंड 30 to 40 लीड्स लेकर आते थे. ठीक है, आउट ऑफ दैट हमारी दिन की 6 से 8 6 to 10 मतलब कभी कभी तो 12 से 15 लीड्स के भी साथ हमने कॉल अरेंज किया है. मतलब ऑन एन एवरेज 6 से 10 कॉल्स हम डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिए थे. एंड यहाँ से 3 से 4 मतलब 2 से 4 तो आप मान के चलो कन्वर्जन आते थे एंड द एवरेज टिकट साइज वॉज गुड इनफ. सो डेली का क्लोजिंग वॉज अराउंड ऑफ 2.5 लाख रुपीज़. राइट, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी चला जाता था. तो इट वॉज अ वेरी गुड नंबर. मतलब जिस टाइम पे हम थे एंड हमारा जो एड स्पेंड था दैट वाज टू लेस जब हमने स्टार्ट किया था. तो दैट वाज नॉट लाइक मोर देन, आई डोंट थिंक सो इट वाज मोर देन 6,000 आई थिंक. क्या मैं देख लूँगा. ठीक है, अभी मैं आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट 6 to 8,000 के बीच में था जहाँ तक मुझे याद है. इफ़ यू आई विल शो यू टू आल्सो. राइट, हम लोग जब अपना कैलेंडर सर्च आउट करेंगे तो. सो बट दिस इंस्टेंट फॉर्म वर्कड रियली 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 वेल फॉर अस एंड करेंटली हम इसी को स्केल भी कर रहे हैं. राइट, वी डोंट नीड टू try any other funnel because ये चीज़ already work out कर चुके हैं हमारे साथ. and after that we have tried to do some in person event. so in person event does not go really well but yeah still. तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, that you have to do and try out all the sort of funnel. anything can happen for you. किसी के लिए वेबिनार वर्कआउट करता है, किसी के लिए इंस्टेंट फॉर्म वर्कआउट करता है, किसी के लिए ट्रिपवायर वर्कआउट करता है, किसी के लिए कुछ वर्कआउट करता है. इट डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर इंडस्ट्री, व्हाट इज़ योर niche where you are targeting, what's your target audience, where they belong from, what they do, what their paying capacity. There is a lot of like segments which you have to finalize before coming on the meet or before finalizing anything that it works or it does not work for us, right? But yeah, एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपको अगर कभी भी मार्केटिंग करना ना, सो डोंट थिंक कि यार ये इनिशियली आपको कम पैसे में अच्छे रिजल्ट ला के देगा. बिकॉज मार्केटिंग नीड्स मनी. अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप मार्केटिंग करो. दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है, बिकॉज अगर पैसे बर्बाद करने हैं तो फिर मैं कहूँगा यार कि इस कम पैसे से बिल्कुल ना जाना. ठीक है, क्योंकि आप कम पैसे से आओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. आप टेस्टिंग में ये सब पैसे डुबा दोगे एंड फिर आप कहोगे कि यार रिजल्ट नहीं आता, ये है वो है. एंड दिस इज़ नॉट हाउ द मार्केटिंग थिंग एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू.
तो हमेशा एक अच्छे खासे बजट के साथ आना, मतलब एटलीस्ट 2 ढाई 3 लाख तो लेकर ही आना अगर मार्केटिंग में उतर रहे हो तो। अदरवाइज लाइक इफ़ यू आर D2C ब्रांड और कोचिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, एंड अपने क्लाइंट को हमेशा कहो कि यार इतना बजट लेके आओ, एटलीस्ट 2 लाख का तो बजट लेकर ही आओ अगर मार्केटिंग करना है तो। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज द क्रिएटिव। डोंट पैनिक, मतलब मैं सब कुछ दिखाऊंगा ऐसा नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगा, बट एक बारी मैं आपको वर्बली वो चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर दैट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिव। अब देखो क्रिएटिव का इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों है मार्केट में, ठीक है, क्यों आज के टाइम पे सारे मार्केटर्स कह रहे हैं क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव, आज के टाइम पे क्रिएटिव एजेंसीज खोल रही हैं, क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है क्रिएटिव की? देखो क्रिएटिव का इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इस वजह से है ना, बिकॉज एंड्रोमेडा, if you know about Andromeda, so you understand कि why everyone is talking about this. ठीक है, okay, perfect, let me write here. So there is a term Andromeda. So basically ये Andromeda का क्या सेंस है ना, Andromeda ये कहता है कि अब हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑडियंस, सॉरी एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस कि मतलब अब हम खुद आपके लिए ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप बहुत होशियार हो, आप हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, हमसे ज़्यादा डेटा है, सो यू कैन डू इट मैनुअली। ठीक है, यू कैन डू इट मैनुअली। लेकिन भाई देखो मेटा को फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मैनुअली करते हो ना, एंड यू थिंक यार मेटा को फ़र्क पड़ेगा, मेटा मेरे अकॉर्डिंग लीड्स के पास मेरे एड्स को पहुँचाएगा, तो नहीं। मैं इसका रीज़न भी देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि एक होता है ऑडियंस कंट्रोल एंड एक होता है ऑडियंस सजेशन। ठीक है, व्हेन यू विल सी इन द टारगेटिंग ना, व्हेन जब आपको ऑप्शन मिलेगा टारगेटिंग करने का, तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक होता है ऑडियंस सजेशन एंड एक होता है हमारा ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, अब अगर आप अब ऑडियंस सजेशन में देखोगे ना, तो ऑडियंस सजेशन में आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट होता है, और आपके पास कस्टम ऑडियंस के लिए लाइक लुक लाइक हो जाता है। ठीक है, फिर रीटारगेटिंग हो जाता है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको ऑडियंस कंट्रोल में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जस्ट लाइक एज, जेंडर, लोकेशन एंड व्हाट एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, कि आप इस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट और लेकिन ऑडियंस सजेशन में ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस सजेशन में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिहेवियर मिलेगा, आपको लुक लाइक मिलेगा, कस्टम ऑडियंस मिलेगा, रीटारगेटिंग मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपने जो ऑडियंस सजेशन दिया मेटा आप वही मानता है? नहीं, मेटा वो नहीं मानता है। सजेशन मतलब क्या होता है यार? सजेशन मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो, right? But control matlab if I'm controlling you, so I have all the right to control you, you are under me, right? That is what control means. But I'm saying ki I have a suggestion for you. Now it's your like it's your own take कि आप उस सजेशन को मानते हो या फिर नहीं मानते हो, राइट? इट्स अप टू यू। तो सजेशन वही होता है। तो मेटा क्या करता है कि जस्ट सपोज कि आपके पास 10,000 लोगों का ऑडियंस है। ठीक है, 10,000 लोगों का आपके पास कस्टम लिस्ट है, जिसने आपका सामान खरीद रखा है, या फिर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है, या फिर लीड फॉर्म पहले सबमिट कर रखा है, या फिर आपके पास 4 लाख 5 लाख लोगों का वी कैन से प्रोफाइल विजिट है, या फिर इंगेजमेंट है आपके चैनल पे, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब ये 10,000 लोग खत्म हो जाएंगे, जब ये 1 लाख लोग खत्म हो जाएंगे, जब ये 5 लाख लोग खत्म हो जाएंगे, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मनी। एंड मेटा का काम क्या है कि मेटा आपसे इंप्रेशन पे चार्ज करता है। एंड जैसे ही आपने इस नंबर को एक्सीड किया, ठीक है, वंस यू विल एक्सीड दिस नंबर, व्हाट विल हैपन? द ओनली थिंग हैपन कि अब आपका जो मेटा है वो आपके एड्स को, ठीक है, आपके एड्स को कोल्ड ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर देगा। एंड दैट्स वाई हमारा जो CPL है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई यू ऑलवेज हैव टू रन समथिंग इन द बैकवर्ड दैट इज ब्रिंगिंग the retargeting audience, because retargeting always works the best in each category, in each condition, right? So that's why organic content is so much important. तो हमेशा अगर कभी भी कोई बिजनेस लॉन्च करना, तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मतलब पेड एड्स,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना। अगर एक पे डिपेंडेंसी शो की, आपका धंधा पक्का डूबने वाला है 110-100%, अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो तो। परफेक्ट, ऑलराइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कंट्रोल में तो आप एज को कंट्रोल कर सकते हो, जेंडर कंट्रोल कर सकते हो, लोकेशन कंट्रोल कर सकते हो, एंड एक्सक्लूजन कंट्रोल कर सकते हो, बट सजेशन नहीं। सो दैट्स वाई एंड्रोमेडा आया, ठीक है, मार्केट में, एंड इट स्टार्ट सेइंग कि नाउ यू डोंट हैव टू सेलेक्ट द प्लेस, select the place, interest, ठीक है, उसके बाद ऑडियंस। उसने कहा कि भाई अब मैं करूँगा, क्योंकि मेटा मेरा है, फेसबुक मेरा है, इंस्टाग्राम मेरा है, व्हाट्सअप मेरा है, एंड मेरे पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन कंपैरिजन टू यू। तो अब मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करूँगा, मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेटर है एंड कौन सी नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई एंड्रोमेडा आया। एंड कुछ लोगों को लगता है कि एंड्रोमेडा इज़ वेरी वर्स्ट थिंग विच मेटा ब्रिंग्स, बट नहीं, एंड्रोमेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच मेटा ब्रिंग्स, बिकॉज क्रिएटिव आपके पास जितने हैं ना, उतना बेटर आपका एड परफॉर्म करेगा, एड परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई आज के टाइम पे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे खासे एड्स रन कर रहे हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, दे आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज, दे आर स्पेंडिंग करोड्स ऑफ रुपीज ऑन द एड क्रिएटिव्स, ऑन द इटरेशन, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। अगर आप एक छोटे लेवल पे हो ना, तो एटलीस्ट तब भी हफ्ते के 5 से 8 क्रिएटिव तो टेस्ट आउट करो ही करो। एटलीस्ट आपके एड अकाउंट में, आपके एड स्ट्रक्चर में 8 से 10 एड तो ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग पॉइंट के साथ वो एड रन होते रहने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वाई एंड्रोमेडा इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो एंड्रोमेडा का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अब सारी चीज़ें, सारा कंट्रोल मेरे पास है, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या आपके लिए बेटर है। एंड ट्रस्ट मी, मेटा का जो सजेशन होता है ना, मेटा का जो ऑडियंस होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, विच आई हैव सीन सो फार, ठीक है, इन कंपेरिजन टू व्हाट वी डू द टारगेटिंग। मेटा की टारगेटिंग काफ़ी बेहतर होती है। सेकेंड थिंग इज दिस कि व्हाट आई वाज सेइंग, या सेकेंड थिंग आई वाज सेइंग कि what the fuck I was saying, I just forget यार man. Anyways, um, perfect. So I was saying actually that you always have to bring the different ideology, the different confident thought, the different psychological beliefs and all other kind of things. मतलब आपका format change होना चाहिए, ठीक है, getting my point? तो you have to do the iteration. That is the most important thing. Perfect. So this is the one thing which I have converted, like completed, and that is the creative वाला part. Now let's talk about the another stuff. इसको मैं अभी canvas में कर दूंगा, ठीक है। Now let's talk about the another stuff, and that is the ad structure. तो अब इसके बाद आई थिंक मुझे एड अकाउंट को ही शो करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, एंड इस चीज़ को मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, एड अकाउंट में। ऑल राइट, सो नाउ हियर इज़ द एड अकाउंट, ठीक है, एंड लेट्स सी कि व्हाट वी हैव डन, एंड क्या करामात हमने किया है इस एड अकाउंट पे। दिस इज़ द कैंपेन आईडी, और सॉरी एड अकाउंट आईडी, जो कि मैं आपको नहीं शो करूँगा, ठीक है, बट यार रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी। ऑल राइट। सो करेंटली अभी एक कैंपेन हमारा लॉन्च हुआ है, ठीक है, बस ओनली वन कैंपेन इज करेंटली रनिंग, जिसका CPL हाई है, आई थिंक अभी 500 के आसपास है। बट आई विल शो यू कि कौन सा कैंपेन हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा नहीं किया, क्यों नहीं किया। इस कैंपेन में हमने कुछ गलतियाँ की थी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। सो एक हम ऐसे कैंपेन को देखते हैं जिसको अभी हमने करेंटली बंद कर रखा है, एंड मैंने कब से स्टार्ट किया है एड रन करना, आई थिंक फ्रॉम दिस वन, राइट, ओके, फ्रॉम 9th में, जहाँ पे हमारा पहला है, ओके 26 में, 9 अप्रैल, दिस वन इज व्हाट आई थिंक। चलो ठीक है, जैसे सपोज कि हमने यहाँ से करना स्टार्ट किया है, एंड मई से लेके हमने अभी तक कितना एड स्पेंड किया है टोटल, वेयर ऑल द डेटा गोज मैन। ओके, सो अभी तक हमने 9th मई से लेके अभी तक हमने स्पेंड किया है 7,06,000 रुपये, ठीक है। इफ़ आई सी की ओवरऑल कितना एड स्पेंड हुआ है, दैट इज़ 9 लाख समथिंग, मतलब 2-2.5 लाख रुपये स्पेंड हो चुके थे, ठीक है। आई एग्जैक्टली डोंट नो, मुझे लगा 80,000 थे, बट या 2 लाख के ऊपर के थे। बट लेट्स गो टू 2026 मई 9,
जून जुलाई अगस्त 21 अपडेट। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इस कैंपेन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कैंपेन, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी, जिस टाइम पे हमने ऐड स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे द पोजीशन वाज नॉट टू मच गुड एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स नहीं थे, बट स्टिल दिस परफॉर्म्स रियली वेल। इफ़ यू विल सी ना, तो पहला तो हमारा है एक इंटेंट, ठीक है। एक इंटेंट है हमारा एड सेट, फिर उसके बाद एक है कोल्ड एंड ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है। फिर एक है हमारा वार्म टारगेट, ठीक है। यहाँ पे वार्म टारगेट में हमने क्या यूज़ किया, हमने टेस्टिमोनियल्स यूज़ किए हैं। बिकॉज सबसे पहले लोगों को अवेयर करना पड़ता है, ठीक है। एक फनल में क्या होता है, सबसे पहला हमारा जो फेज़ होता है वो होता है अवेयरनेस का फेज़। लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम लोग ऐड स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि जो, अब हम पहले आपको पहले ये बताते हैं कि जो अलग अलग टारगेटिंग होती है ना, तो फर्स्ट इज़ कोल्ड टारगेटिंग, ठीक है। एक होती है कोल्ड टारगेटिंग। तो कोल्ड टारगेटिंग में वी हैव टू एडुकेट देम अबाउट द प्रॉब्लम। बिकॉज भाई पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा ना इंसान से। फिर हमारा आता है वार्म, ठीक है। वार्म टारगेटिंग। वार्म टारगेटिंग में क्या होता है कि वी ओनली टारगेट दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो, एंड यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस होते हैं, कुछ हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि इतना परसेंट वीडियो किसी ने दिखा, इतने सेकंड का वीडियो किसी ने देखा, इतना इंगेज किया एंड ऑल। तो वो आते हैं हमारे वार्म टारगेटिंग में, ठीक है। वार्म टारगेटिंग में जिसमें हम कह सकते हैं कि वी कैन से कि ऐसे लोग जिसको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं एंड नाउ दे वांट फॉर द सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वी प्रोवाइड देम द सोल्यूशन। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, एक और टारगेटिंग कैंपेन होता है, ठीक है, वेयर द थिंग्स गेट ब्रूटल। उस टारगेटिंग कैंपेन में, उस रीटारगेटिंग कैंपेन में हम ऐसे लोगों को लाइक हाईली क्वालिफाइड, जिन्होंने हमारे वीडियो को 75% देखा है, 50% देखा है, जिसने हमारे इंस्टाग्राम के साथ इंगेज किया है, हमारे पोस्ट के साथ इंगेज किया है, हु इज़ जेन्यूनली इंटरेस्टेड, ठीक है, उन्होंने लाइक्स वाइक किया है, मीन्स तो इंटरेक्शन इज़ एट 70%। सो एक टारगेटिंग वैसी होती है। तो कोल्ड ऑडियंस में एडुकेट करते हैं लोगों को, वार्म टारगेटिंग में उनको सोल्यूशन देते हैं, एंड री टारगेटिंग में हम डायरेक्टली उनको पिच करते हैं कि येस वी प्रोवाइड दिस, एंड इफ यू जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट दिस, सो बुक द कॉल एंड सिट विद द काउंसलर। Getting my point? So this is the like 3 stage of targeting which we actually do for our clients. ग्रेट। सो उस टाइम पे हमारा जो बजट था ना, दैट वाज ओनली 4500। आई एक्चुअली मिस्ड, ठीक है, 8000 नहीं था, 4500 था हमारा बजट। ऑलराइट, नाउ इफ़ यू जस्ट सी कि इंटेंट में हमने क्या टारगेट कर रखा था, हमने बहुत कम टारगेटिंग कर रखी थी। एज हमारा 23 से 32 था, एंड जेंडर ऑल था मेनली। एंड जो डिटेल टारगेटिंग थी ना, इफ़ यू कैन सी, कुछ 3-4 कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया है। ऑस्ट्रेलिया, जॉब इंटरव्यू, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लिंक्डइन और जॉब हंटिंग और करियर डेवलपमेंट, ठीक है। दैट आर द थिंग्स विच वी हैव टारगेटेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बैरियर होता है ना, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एड रन कर रहे हो एंड आपकी जो लैंग्वेज और इंग्लिश में ही वीडियो बना रखे हो, तो क्या होगा ना कि आपके पास वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू, दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग रॉन्ग विथ यू। सो दैट्स आई ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स लाइक इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, मराठी। ये हमारी ऑडियंस थी, दैट्स वाई वी हैव टारगेटेड दिस थिंग। प्लेसमेंट में आपको कुछ नहीं छेड़ना है। इफ़ यू वांट टू टर्न ऑफ द ऑडियंस नेटवर्क, या फिर आप फेसबुक को टर्न ऑफ करना चाहते हो, यू कैन, बट मेरे पे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स वाई मैंने इसको ऐसा रखा है। देन देर इज़ लाइक द एड लेवल, ठीक है। अब एड लेवल में हमने क्या किया है, एक दिस इज द AI वीडियो, ठीक है। अब इस AI वीडियो में वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। हमने बताया कि मेनली क्या प्रॉब्लम है, कि आपने 200 एप्लीकेशन भेज रखा है बट स्टिल आपके पास कोई कॉल बैक नहीं आया, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई दिस वी हैव क्रिएटेड दिस AI वीडियो। आप ये लिखते जाना, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग। अब आपको खुद लिखना है, खुद समझना है। सबसे पहला AI वीडियो, आफ्टर दैट देर इज़ वन मोर टेस्टिमोनियल, ठीक है। देर इज़ द टेस्टिमोनियल ऑफ अ गाय, देन देर इज़ ऑल्सो टेस्टिमोनियल ऑफ दिस गाय, बिकॉज हमने यहाँ पे इंटेंट कर रखा है, ठीक है। ये इंटेंट है, मतलब लोग ऑलरेडी हमको जानते हैं, हमारे कंटेंट को उन्होंने देख रखा है। देन देर इज़ ऑल्सो इंटेंट वन, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे भी हमने प्रॉब्लम अवेयरनेस ही कराई है, ठीक है। देन ऑल्सो देर इज़ द प्रॉब्लम अवेयरनेस। इफ़ यू विल सी हियर, देर इज़ AI वीडियो, ठीक है, प्रॉब्लम अवेयरनेस। Then here is the problem, here is the problem, then here is the testimonial. It means कि we have like get merge the
types of content, types of creatives at the single time. And trust me, that performs really, really, really well. And अगर आप देखोगे warm targeting में, तो यहाँ पे तीनों हमारी like testimonials है, because testimonials, case studies या फिर final outcome creates the conversion, ठीक है. So mainly ये हमारा क्या था, एक एड स्ट्रक्चर था. अब ये परफॉर्म क्यों किया, बिकॉज हमारे पास अच्छा खासा डेटा था, हमने स्टार्ट किया था ऐड पे, एंड हमने बहुत अच्छा खासा स्पेंड नहीं किया था. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी आर टारगेटिंग दीज ऑडियंस. तो हमारा ऑडियंस बहुत लाइक न्यू भी था, एंड हमारा एड्स भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि यहाँ पे कंपटीशन इस वाले निश में, इस स्पेसिफिक में थोड़ा कम है इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर निश. परफेक्ट. नाउ where we have to go now. So this ad bring 602 leads, ठीक है. After that ad, this is the another ad जो हमने जून में लॉन्च किया था, इसने 64 leads ला के दिया था हमें, ठीक है. So we turned this off. So 64 was not like a good number, क्योंकि यहाँ पे junk leads आना start हो गई थी इस टाइम पे. I don't know why, like how, but somehow I just toggle off what क्वालिटी लीड्स मैंने कन्वर्जन की जगह क्वांटिटी में सेलेक्ट कर लिया था. दैट्स वाई वी आर गेटिंग द सेट क्वालिटी ऑफ लीड्स. दैट्स वाई वी जस्ट टर्न ऑफ दिस, एंड हमने ये कैंपेन लॉन्च किया. दिस परफॉर्म वेल, क्योंकि देखो यार, कम CPL भी अच्छी बात नहीं होती. अगर आपका CPL बहुत कम आ रहा है ना, इट मीन्स यू आर गेटिंग द जंक पीपल, यू आर गेटिंग द लूजर क्लाइंट्स, जो आपसे परचेज नहीं करेंगे. देन आफ्टर हमने एक नया कैंपेन लॉन्च किया. दिस इज द कैंपेन, ठीक है, विच गॉट द बेस्ट, लाइक बेस्ट नहीं कहेंगे, बट ऑन एन एवरेज अच्छा रिजल्ट लग दिया. दैट वाज 229. देन आफ्टर द मोस्ट ऑफ द रिजल्ट विच वी हैव जनरेटेड सो फॉर फ्रॉम अ सिंगल कैंपेन, दैट इज दिस 1214 लीड्स इन द कॉस्ट ऑफ 220. एंड एक बात याद रखना, ये इंडिया में नहीं चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है. आपको हर जगह AU दिखेगा, इट मीन्स ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ठीक है. देन देर वॉज लाइक करेंटली वी आर रनिंग दिस कैंपेन. एंड बेसिकली यार देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि एड बनाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील. Ad banana is not a very big deal. The strategies behind those ads is a very strong thing. आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिएटिव्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है. क्रिएटिव कैसे कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है. आपको अब पता चलेगा कि क्रिएटिव कितने टाइप्स के होते हैं एंड किस तरीके के क्रिएटिव्स एक्चुअली वर्कआउट करते हैं. जस्ट काउंट डाउन विथ मी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 तरीके के एड्स हमने लगा रखे हैं, ठीक है. करेंटली वी आर लाइक इट यूजिंग 12 काइंड्स ऑफ एड्स. अब आपको मैं दिखाऊंगा भी कि अलग अलग एड्स कैसे कैसे हैं. दिस वन इज टेलिंग अबाउट द कम्युनिटी, ठीक है. दैट इज जस्ट द गाइड, यूज दिस फोन एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ सेल्फी. ही इज द फाउंडर बेसिकली, सो इट्स अ फाउंडर लेवल इंटरेक्शन. देन देर इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग वीडियो वेर वी हैव इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन, बट इसमें हमने हुक का इटरेशन किया है, ठीक है. हमने हुक इटरेशन किया है इसमें. आप देखोगे कि दिस इज द फर्स्ट वन, आई थिंक TR Visa 1, TR Visa 2, TR Visa 1 एंड TR Visa एक और होगा, ये रहा, ठीक है. सो मेनली हमने 3 हुक का इटरेशन किया है विद द सेम कॉन्टेक्स्ट, विद द सेम कॉन्टेक्स्ट बॉडी एंड द सेम कॉल टू एक्शन, ठीक है. आफ्टर दैट इफ यू विल सी, सो देयर इज अ टेस्टिमोनियल. कितने टाइप के होंगे, 1 2 3 टाइप के वीडियोस हो गए. देन देयर इज टेस्टिमोनियल, फिर उसके बाद TR Visa, फिर उसके बाद AI वीडियो, देन इज सेल्फी काइंड ऑफ थिंग. 16:9 हमने फॉर्मेट भी चेंज करके रखा है, ठीक है. 16:9, ठीक है. देन देयर इज टेस्टिमोनियल, because in all the condition testimonials works the best for us all the freaking time. Then there is 9:16, the same content but in 9:16. It means कि you don't even know कि आपके लिए कौन सा फॉर्मेट, कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिगर, किस एक्सपेक्ट रेशियो में, किस तरीके का, किस फॉर्मेट का कंटेंट आपके लिए वर्कआउट कर जाए. दैट्स वाई यू ऑलवेज हैव टू कीप ट्राइंग, कीप इटरेटिंग, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू विल स्टार्ट इटरेटिंग यू विल डेफिनेटली गोना टू bring result. It's my promise to you, ठीक है. Currently if you will see, हमारे पास 20 से 25 एड्स पड़े हुए हैं, ठीक है. If you will just go here now, if you will click on the ad वाला बटन, तो you will get to understand कि भाई हमारे पास कितने क्रिएटिव्स पड़े हुए हैं. हमने 4 UGC भी बनवा रखा था. there is one, ये दोनों तो सेम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. All of these videos are different. ये मत सोचना कि सब एक हैं. 30 आई थिंक. कितना हुआ भाई? 3, 6, 9, 9, 10, 9, 10, 20, 30, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. अराउंड 46 एड्स. एंड अभी करेंटली हमारे पास 10 एड्स ड्राइव में पड़े हुए हैं. तो यू कैन सी द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिएटिव इटरेशन वी डू. हमने क्या क्या ट्राई कर रखा है. हमने कैराजल्स भी ट्राई कर रखा है. दैट डस नॉट वर्क फॉर अस बिकॉज CPL बहुत हाई था. स्टैटिक में जंक लीड्स, CPL लो था. बट द वीडियो एड्स परफॉर्म रियली वेल फॉर अस. ऑलराइट. सो यार देखो यार, ये सिंपल सी चीज़ है. इफ़ यू विल डू द इटरेशन यू विल डेफिनेटली गोना गेट द रिजल्ट. दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू. आप अगर देखोगे ना इनका CTR, अगर आप देखोगे CTR कितना है ओवरऑल, अगर कैंपेन्स की बात करें हम, तो क्लिक थ्रू रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका 2 से ऊपर रहना चाहिए हमेशा. ठीक है. CTR इज़ 2.77. ये वाला गंदा था. ठीक है. दैट्स वाई इसको कहाँ चलाया था मैंने यार, अभी 18 अगस्त को मैंने लॉन्च किया एंड शाम में मैंने बंद कर दिया था. तो इसको तो आप कंसीडर भी मत करो. इसमें पैसे भी कितने ख़त्म हुए भाई. अमाउंट स्पेंड इस पर सिर्फ 1000 रुपये ख़त्म हुए. तो इसको तो आप कंसीडर भी मत करो. ठीक है. 4.09. ठीक है, जो करंट अभी एक्टिव कैंपेन है. फिर 2.16, 2.63, 4.60, 5.20, 4.55, 2.64, 3.81, 4.71. ठीक है. 4.31. After that 4.4. Average is 4.17. And if we just do the Google now, what's the best CTR in Meta ads according to the benchmark rate in 2026. अगर हम लोग AI पे जाएं, ठीक है, तो AI का क्या कहना है. AI का कहना है ये है कि बेस्ट टारगेट क्लिक थ्रू रेट CTR फॉर मेटा एड इज 2.50 और हायर. हमारा कितना है? 4.17. इट मीन्स कि वी आर डूइंग सो फ्रिकिंग ग्रेट. लिटरली टॉप ऑफ द फनल पे आपका इतना रहना चाहिए. अगर हम लोग देखें हाउ इज़ 4. ठीक है, अगर 4 में इससे पूछूँ ना ये क्या कहने वाला है. ओके, हाउ इज 4.17. Meta ad is an exceptional top tier result, you know, and that's why हमने इतना ज़्यादा अपने क्लाइंट का मार्केटिंग किया है. That if you will search him ना, Arc abroad, you will get him here and in the AI mode also. It means कि अगर आप ChatGPT वगैरह पे भी सर्च करोगे, क्लाउड पे सर्च करोगे, कहीं पे भी किसी भी AI टूल पे आप सर्च करोगे ना, you will find this guy that build the credibility. एंड इफ़ यू थिंक यार ये तो सबका हो जाता है, नहीं, सबका नहीं होता यार, सबका नहीं होता. सो दैट्स वाई आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हमेशा बैलेंस्ड वे में लेके चलना है. ठीक है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. गेटिंग माई पॉइंट. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू टेल यू. कुछ मेरी बातें अब ध्यान से सुनना. ठीक है. अब मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा. ठीक है. अब मैं बोलता जाऊँगा. अब आप बंद कर दो इस रिकॉर्डिंग को. ठीक है. आई जस्ट नो नीड टू सो दिस रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है. ठीक है. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना. लेट मी गेट मोर कंफर्टेबल विथ यू. अगर आप ऐड रन करते हो ना, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अपने ऐड को टाइम दो. कुछ मेरी बातों को याद करना, कुछ चीज़ों को मेरे नोट डाउन कर लेना. दैट यू हैव टू गिव टाइम टू योर ऐड. बिकॉज अगर आप अपने ऐड को टाइम नहीं दोगे, वो अगर लर्निंग फ्लोर को ब्रेक नहीं करेगा, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट. लर्निंग फ्लोर किसी भी कैंपेन में ना बेसिकली व्हेन इट हेड द 50 कन्वर्जन पर एड सेट, तब वो मेनली जाके ब्रेक होता है. ठीक है. मतलब जस्ट सपोज कि अगर आपको पता करना है कि हाउ मच मनी आई हैव टू स्पेंड अगर मुझे अपने लर्निंग फ्लोर को ब्रेक करना. ठीक है. जस्ट सपोज कि आपका एक कैंपेन है, उस कैंपेन में 3 एड सेट आपने बना रखा है. ठीक है. 3 एड सेट आपने बना रखा है और आपने ऐड रन किया, बट यू डोंट इवन नो कि व्हेन माय टारगेट लाइक आपका 150, मान लो आपने 3 एड सेट बना रखा है. इट मीन्स यू हैव टू गेट 150 कन्वर्सन या फिर 150 लीड या फिर 150 सेल टू ब्रेक द लर्निंग फ्लोर. अब आपका जो अभी करेंटली रन कर रहे हो आप ऐड, तो यू आर गेटिंग द CPL ऑफ अराउंड जस्ट सपोज 400. ठीक है.
तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। द फॉर्मूला इज टारगेट CPL मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड बाय 7, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। यस, मतलब टारगेट CPL इंटू 50 डिवाइड बाय 7, ठीक है, परफेक्ट। या अब जस्ट सपोज कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपका पर डे का जो लाइक पर लीड का जो CPL है, जो आपका कॉस्ट पर लीड आ रहा है, फिर कॉस्ट पर सेल आ रही है, वो है अराउंड 400 रुपीज़ का। तो 400 इंटू 50 करो, इंटू 7 करो, वॉट एवर द रिजल्ट यू आर गेटिंग, इट मीन्स दिस इज द मिनिमम, लाइक नो सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम जो आपको स्पेंड करना है पर एड सेट। पर एड सेट आपको इतने पैसे लगाने हैं, तो आपको अराउंड वही 2500 से 3000 के बीच में आएगा। जस्ट सपोज कि 3000, इट मीन्स कि आपको डेली बेसिस पे आपको पूरे कैंपेन में 9000 रुपीज़ एड स्पेंड करना, ठीक है। दैट इज़ द लाइक छोटा सा कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स विच यू कैन डू टू जस्ट अंडरस्टैंड द CPL कि आपका लर्निंग फ्लोर कब ब्रेक होने वाला है। सो ओवरऑल मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप कभी भी हड़बड़ी मत करना। दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो पैसे लेकर आना, विदाउट पैसे यू कांट डू द मार्केटिंग, ठीक है। थर्ड थिंग इज दिस कि अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे डिपेंडेंट हो या फिर आप सिर्फ और इनऑर्गेनिक पे डिपेंडेंट हो, यू आर गोइंग टू बी कोलैप्स्ड। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि भाई एड्स भी परफॉर्म नहीं करते हैं, समटाइम द क्वांटिटी गेट लूज, द क्वालिटी गेट लूज। और ऑर्गेनिक में देयर इज़ नो एनी लाइक आइडिया कि कब आपके पास रिजल्ट आए, कब ना आए, कब आपके पास मीटिंग्स बुक हो, कब ना हो। यू डोंट नो एनीथिंग। That's why you have to build a very predictable system in any business, that you have to build the content in organic or in inorganic both. आपका दोनों बिजनेस, दोनों फनल चलते रहना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब जो मेरा पुराना वाला जो कैंपेन था वो परफॉर्म नहीं किया, मतलब परफॉर्म तो अभी कर रहा है फिलहाल। क्यों फ्लक्चुएशन हुआ था? बिकॉज मैंने एक ही दिन में कैंपेन को ऑन किया, टर्न ऑफ किया, ऑन किया, टर्न ऑन किया, नया कैंपेन बनाया, फिर उसको टर्न ऑफ किया, फिर एक नया कैंपेन को ऑन कर दिया। मतलब भाई मेटा को मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसको पता ही नहीं चला कि भाई कौन से कैंपेन को लॉन्च करना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। दैट इज़ वाई you always have to give time to your meta. That's the most and the most important thing. You should have budget. आपका ऑर्गेनिक हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, सो दैट आपका रीटारगेटिंग हमेशा पीछे से स्ट्रांग रहे, आपके पास कस्टम ऑडियंस का लिस्ट रहे, आपके पास आपके व्यूअर्स का, आपके इंगेजर्स का लिस्ट रहे, एंड आप उसको यूज़ कर सको, एंड यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स परफेक्ट। फोर्थ थिंग इज दिस कि आपके पास इनफ नंबर ऑफ क्रिएटिव होने चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कितने आपके पास पैसे हैं, नहीं है, डज नॉट मैटर यार। आप कैमरा उठाओ, स्टार्ट स्पीकिंग, आपके पास क्लॉड है, आपके पास डेफिनेटली यू आर इनटू द कोचिंग और आप कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, तो आपके पास एक आक एडिटर तो होगा ही होगा। सो यू कैन जस्ट हायर दैट और यू कैन जस्ट डू इट ऑन द फ्रीलांस। एंड अगर आप हफ्ते के 5 वीडियोस निकलवाते हो, 6 वीडियोस निकलवाते हो, यू आर कॉस्टिंग अराउंड 7 to 8,000 रुपीज़ फॉर द एडिट, एंड यू कैन अफोर्ड दैट वेरी ईजिली। दैट इज़ द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। तो ये 4 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड in the meta ads, and if you want to build a real marketing funnel which actually brings you the like leads, the sales every single day. That is all from my end. If you think that I have missed anything, so yeah, do let me know, because सबसे important चीज़ था मेरे को दिखाना कि भाई मैंने क्या funnel यूज़ किया है, ठीक है। मैंने वो चीज़ शो कर दिया आपको, मैंने शो कर दिया मेरा एड स्ट्रक्चर क्या है, मेरे क्रिएटिव्स कैसे होते हैं, मैंने आपको सब कुछ शो कर दिया। दैट इज़ द ultimate thing which you need to know if you want to run the meta ads. But yeah, it's come with experience. It's not like this कि जो चीज़ें मेरे लिए परफॉर्म करी हैं वो डेफिनेटली आपके लिए भी करें, बट देर इज़ सम assumption, देर इज़ सम prediction based on that हम चीज़ों को iterate करते हैं. That is exactly what you have to do. So yeah, if you are a coach, consultant or a service provider or an expert who is really and deliberately want to grow their business, सो यार आई हैव प्रूवन, मतलब मैंने अपने सिस्टम को प्रूव किया है, मैंने रिजल्ट्स लेकर आए हैं। दैट इज़ वाई समवन इज ट्रस्टिंग ऑन मी एंड ही इज स्पेंडिंग 7 लाख रुपीज़ विथ मी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देर इज़ द सर्विस चार्ज ऑल्सो, देर इज़ माई टीम फॉर दैट ऑल्सो। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट to grow, so just book a call from the link which is given below, and I will be there on the call and I will explain you and go through the exact process, the exact system. So till then, be a dreamer, be a achiever. See you then. Bye.